Good morning class. Today we are going to start chapter 2nd in history of class 8. The name of the chapter is From Trade to Territories. Trade means business and territories means area. तो हम इस चैप्टर में ट्रेड टू टेरिटरीज यानी बिजनेस कौन कौन से एरिया में फैला था उसके बारे में पढ़ेंगे. Our first topic is mercantilism and the European expansion of Europe trade. In this chapter we will read about the East India Company which came here to trade, but eventually they became a supreme political power in India. According to the mercantilism theory, the prosperity of a country depends on its capability to produce more than it consumes and export more than import. It means मैर्केटिज्म की थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री में इंपोर्ट कम किया जाए एक्सपोर्ट से, यानी एक्सपोर्ट की जाने वाली चीज़ें ज़्यादा हो जो हम बाहर भेज सकें और बाहर से मंगाई जाने वाली चीज़ें वो कम हो. हम ज़्यादा चीज़ें बनाएं जितनी हमारे देश में लगती है उससे ज़्यादा चीज़ों का प्रोडक्शन अगर हमारे देश में होता है तो वो मैर्केटिज्म थ्योरी में आता है. इट मीन्स हम जितना कंज्यूम कर रहे हैं, जितना अपनी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं उससे ज़्यादा का हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए टू बैलेंस अ पॉजिटिव ट्रेड. Now we will read about the expansion of Europe trade. Vasco da Gama, I think you have heard this word. Vasco da Gama in 1498, a Portuguese navigator and explorer discovered a new trade route, sea route to India from Europe. वास्को डी गामा एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, नेविगेटर थे जिन्होंने एक नया सी रूट खोजा था इंडिया आने के लिए, यूरोप से इंडिया आने के लिए, जो पहले के रूट से काफ़ी छोटा था. फॉर ड्यू टू दिस रीजन पोर्टुगीज वर द फर्स्ट यूरोपियन which established their trading factories here in India. So after they discovered a new sea route by the Portuguese followed by a Dutch, French, these European traders also came to India for trading spice and textile. Portuguese were the first trader who came India and established their trading center in India. They established their colonial settlement at the Goa, Daman and Diu. And you will be surprised to know that Goa remained with Portuguese till 1961. It means हमारे इंडिपेंडेंस के बाद भी 1961 तक गोवा पर पोर्टुगीज़ का अधिकार था. पोर्टुगीज़ ही वो पहले थे जिन्होंने सी रूट खोजा और वो यहाँ पर आकर इंडिया में आकर सबसे पहले ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश करने वाले पोर्टुगीज़ ही थे. उन्होंने गोवा, दमन एंड दीव पर अपने ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश किए और गोवा 1961 तक उनके अधिकार में रहा था. इसके बाद में सेकंड आता है द डच. पोर्टुगीज़ के बाद आने वाले यूरोपियन ट्रेडर थे जो इंडिया आए थे. उन्होंने अपने जो कॉलोनियल सेटलमेंट्स हैं वो सूरत, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम यहाँ स्टैब्लिश किए थे. थर्ड द फ्रेंच एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर कोई टक्कर देने वाला इसकी बराबरी का जो था ट्रेडर थे वो थे फ्रेंच यहाँ आए और उन्होंने अपना जो ट्रेडिंग सिस्टम यहाँ स्टैब्लिश किया वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर का था और उन्होंने अपने जो सेंटर पुडुचेरी, मेह और कराईकल में स्टैब्लिश किए थे. दे स्टैब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर एट पुडुचेरी, मेह एंड कराईकल. So what we have understood by this discussion, English East India Company which came here to trade, but eventually they became a supreme political power in India. Vasco da Gama, the first Portuguese navigator who discovered sea route to India from Europe, so that Portuguese were the first European who set their trading center in India, followed by the Dutch and French. English East India Company in its early years, we will discuss about the early years. East India Company set up their trading first post in Surat in 1609.
In 1615, Sir Thomas Roe arrived in India in the court of Jahangir as an English ambassador and received a royal farman which allowed to them to set up their more factories in India apart Surat. Bombay, at present we say Mumbai, a group of islands was under the Portuguese that time. When Prince Charles II got married with the Portuguese princess, he got Bombay as in a dowry from the Portuguese rulers. ईस्ट इंडिया कंपनी जो अपनी स्टार्टिंग के जो साल थे उसमें उन्होंने अपनी फर्स्ट जो ट्रेडिंग कंपनी थी, जो ट्रेडिंग फैक्ट्री थी, वो सूरत में लगाई थी 1609 में, और 1615 में 1615 में सर थॉमस रॉय जो इंग्लिश एम्बेसडर थे, वो जहांगीर के कोर्ट में आए। उन्होंने एक ऐसा रॉयल फरमान जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट जहांगीर से हासिल कर लिया, जिसके थ्रू उनको ये छूट दी गई, ये अलाउ किया गया कि वो सूरत के अलावा भी इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं, कई फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। इसके बाद मुंबई में भी उस समय, क्योंकि पोर्तुगीज रूलर थे और ब्रिटिश जो प्रिंस थे चार्ल्स II, उन्होंने पोर्तुगीज प्रिंसेस से शादी की थी और उन्हें मुंबई एज अ डॉरी के रूप में, दहेज के रूप में मिला था। Now our second topic is struggle for power. By the 18th century, there were two major powers, French and British. However, in India, different European countries set up their various trading centers. So everyone of them wanted to take monopoly over the trade and wanted to gain more profit. तो जो मेजर पावर जो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स थे, उनके बीच में स्ट्रगल हुआ था, जिसकी यानी दोनों ही पावर के लिए स्ट्रगल करने लगे थे, और इनके बीच में 3 मेजर फोर्ट, कर्नाटिक 3 फोर्ट लड़े गए थे, फाइट किए गए थे। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर 1746 to 48, सेकेंड कर्नाटिक वॉर 1749 to 54 एंड थर्ड कर्नाटिक वॉर 1756 to 63। ये 3 कर्नाटिक वॉर ऐसे थे जो दोनों ही यूरोपियन जो पावर थी उनके बीच में, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़े गए थे। एंड का जो थर्ड कर्नाटिक वॉर था, उसमें ब्रिटिश एम्पायर ने या ब्रिटिश रूलर ने अपनी बहुत ही चतुराई से फ्रेंच कंपनीज को, फ्रेंच पावर को हरा दिया था at a fight of Vendy Bosch in 1760. By the middle of 18th century, the Mughal Empire disintegrated into various independent kingdoms across the India, and Britishers took advantage of this weakness of Mughal Empire. After the Alivardi Khan, Sirajuddaulah became the Nawab of Bengal, and Bengal was the richest provinces of that time. When Sirajuddaulah became the Nawab, Britishers are trying to fortify the Calcutta fort, and Sirajuddaulah asked them to immediately stop their fortifying and pay revenue. जब सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान के बाद नवाब बने, उस समय जो ब्रिटिशर्स थे वो कैलकाटा के फोर्ट को चारों तरफ से किलेबंदी करना उन्होंने शुरू कर दिया था, यानी अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया था। और सिराजुद्दौला ने उन्हें इमीडिएटली इस काम को करने से रोका। उन्होंने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते, और रेवेन्यू देने के लिए भी बोला। एंड Sirajuddaulah refused to give further concession in the trade. उन्होंने आगे जो कंसेशन उनको मिली थी कि वो टैक्स फ्री अपना ट्रेड इंडिया में कर सकते थे, ये चीज़ भी, ये कंसेशन भी उनको स्टॉप कर दिया था, देने से मना कर दिया था कि वो आगे बिना टैक्स दिए इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकते थे। और यही रीज़न बना बैटल ऑफ प्लासी का, क्योंकि ये बात ब्रिटिशर्स को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने सिराजुद्दौला के अगेंस्ट फाइट शुरू कर दी थी। इस फाइट को द बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं, जो 1757 में स्टार्ट हुई थी। और रिजल्ट ये रहा, सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड
killed by them. So the Battle of Plassey, when was it fought? It fought in 1757. Between whom? Between the Sirajuddaulah, the Nawab of Bengal, and the British Empire. And what were the result of this battle? The Sirajuddaulah was captured and killed by the Britishers in the Battle of Plassey. Now we will discuss about the Battle of Buxar. After the Sirajuddaulah, Mir Qasim became the Nawab of Bengal. He soon realized that he depended on the Britishers. सिराजुद्दौला के बाद जब मीर कासिम बंगाल के नवाब बने तो कुछ दिन तो सब सही चला, लेकिन बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि वो पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी पर डिपेंड है और वो अपने आप को फ्री करना चाहते थे, ब्रिटिशर्स के फ्री करना चाहते थे। इसलिए उसने जितने भी ऑफिशियल जो ब्रिटिशर्स के क्लोज थे, कंपनी के क्लोज थे, उन सब को अपनी जगह से यानी हटा दिया उनकी पोस्ट से, और उसने कोशिश की कि वो इंडियन ट्रेडर को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दे जितने कि ब्रिटिशर्स को इंडिया में मिली हुई है बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए। तो उसने इंडियन ट्रेडर को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी और चेक उन्होंने Mir Qasim tried to check that British could not misuse their power of trading. उसने ये भी चेक करने की कोशिश की जो कि ब्रिटिशर्स को जो कंसेशन दी हुई है वो उसका मिसयूज़ ना करे। ये जो मूव उसने किया था, ये जो स्टेप मीर कासिम ने लिया था, उसका रिजल्ट यही रहा कि ब्रिटिशर्स उससे अलार्म हो गए थे। उनको ये लगने लगा था कि आगे जाकर मीर कासिम उनके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए उन्होंने मीर कासिम को बंगाल के जो नवाब थे उसकी पोस्ट से, उस गद्दी से हटा दिया। आगे जाकर मीर कासिम ने इस वजह से मीर कासिम शुजाउद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, शाह आलम जो मुग़ल एम्परर थे, उनके साथ मिलकर एक अलायंस किया, मतलब कंबाइंड फोर्सेस बनी। एक तो मीर कासिम की, दूसरे शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, और तीसरा शाह आलम जो मुग़ल एम्परर थे। इन तीनों ने कंबाइन होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई करने की सोची और लड़ाई स्टार्ट की, जिसको हम बैटल ऑफ बक्सर बोलते हैं। जो कब लड़ी गई थी? 1764 में। एंड द रिजल्ट वर मीर कासिम एंड हिज अलायंसेस, जो कंबाइंड फोर्सेस थी मीर कासिम की, शुजाउद्दौला की और शाह आलम की, ये तीनों ने मिलकर जो कंबाइंड फोर्स बनाई थी वो ब्रिटिशर से हार गई और मीर जाफर को मीर कासिम की जगह बंगाल का नवाब अगेन बना दिया गया। जो अवध के जो नवाब थे उनको 50 लाख रुपीज़ एज ए कंपेंसेशन ब्रिटिशर्स को देने पड़े। देन व्हाट वी हैव लर्न द बैटल ऑफ बक्सर फॉट इन 1760